based in our Department of Statistics only. It is a combined effort for inducing sense of responsibility and the students towards the society, spreading awareness and increasing sensitization towards social and national problems, and encouraging students for taking steps towards a better change. Its domain also consists of disseminating the importance of sustainable development goals and work for achieving its goals. OSH facilitates the interested students with a platform to raise their point of view of recent challenges which our society is facing and discussing over the selected topics with the aim to find solutions. Here, selected topics are discussed upon, and the topics range from national to international conflicts, academic issues, economic and social threats, psychological issues, mental health, culture, basically all walks of life. And these are discussed in the presence of the expert of the respective field. Every week, the topic is announced and the report is prepared according to the solutions and recommendations so obtained at the end of the discussion. The best part about OSH is that it is open to all the students and everyone is welcome to attend the discussion and make their presence by sharing their knowledge and experience. Today's session particularly is very special because we are conducting it after quite a long break. It feels nostalgic and happy for some of us. Before exploring more the Guru Purnima, I want to say a very famous shlok, a Sanskrit shlok, in the presence of our gurus. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Param Brahma Tasmay Shri Guruve Namah. अर्थात गुरु ब्रह्मा है जो सृष्टि के भगवान हैं, जिन्हें जनक भी कहा गया है। गुरु विष्णु है जिन्हें आयोजक कहा जाता है। गुरु महेश्वर है जिन्हें शिव या संहारक कहा जाता है। गुरु साक्षात परम ब्रह्मा का अर्थ है सर्वोच्च देवता या सर्वशक्तिमान। क्योंकि गुरु हमें प्रकाश की मार्ग पर ले जाता है, इसलिए गुरु ब्रह्मा के समान है और हम उस गुरु को नमन करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुरु परम ब्रह्मा और परम देवता का अवतार है। इसी में आगे बढ़ते हुए मैं डॉक्टर मसूद सर को से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमें ब्लेस करें अपने वर्ड से। प्लीज सर। Thank you, Professor Mishra, and thank you all the students for inviting all of us for this program. It is a Guru Purnima, and I am new to the system, just 6 months old, right? So I may not be knowing many of you except the PG2 students whom I taught, right? So apart from the faces, I don't know anyone. Sheila ma'am has been my senior also, and she has always been a guiding light, right? So that's obviously that goes a good way towards everything in the department. And related to this Guru Purnima, the importance of Guru is everywhere in every domain, every culture. And the role of the Guru is not just to teach students related to the subject, it is related to all the life values, everything that is required, right? Because any Guru can be just like a parents also, even a higher role than parents, right? Because for the parents, the daughters and the son remain the same. But for all of us, every year a new batch, right? So our responsibility comes in a bigger way, so that all the students not only should be good scholars and good students, as well as good human beings and good citizens also of the country, right? So that they may contribute to their best to make a better society, to make a better country also. And related to the subject, obviously, it's all of us responsibility to make our subject more useful, right? So that
obviously this subject and this university will always be a part of our life. I have been a student here, so I always say that this is my alma mater, and it's a matter of pride for me to come back to my department. So it will always be with all of you. So खूब पढ़ाई करें, खूब अच्छे इंसान बने, राइट? बहुत मुश्किल नहीं होता अच्छे इंसान बनना, बस जो अपने लिए अच्छा लगता है वो दूसरे के लिए भी सोचे, बस. थैंक यू. थैंक यू. Thank you, थैंक यू sir, डॉक्टर for साहब. ये words of हमारे wisdom. डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं अभी जो एंकरिंग कर रहे हैं, आदित्य पांडे हैं, और इन्होंने ही सबसे पहले रिस्पॉन्ड किया. मैंने कहा इनसे जब कि शुरू करो, तो इन्होंने कहा यस मैम वी कैन डू इट एट एनी शॉर्ट नोटिस आल्सो. सो ही टुक द इनिशिएटिव, और आपके ब्लेसिंग्स के साथ इन लोगों में भी लीडरशिप बने और अच्छे नागरिक के रूप में बने, ऐसा हम लोग भी चाहते हैं. बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने भी ज्वाइन किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ठीक है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. Now I would like to request Professor Sheila Mishra ma'am to do the lamp lighting and pay tribute to all the teachers of the entire world. Please, ma'am. तो ये उन सभी गुरु लोगों के ऑनर में है जो हम लोगों को शिक्षा देते हैं. जो तुम लोग भी आओ ना सामने, तुम लोग दे रहे हो सभी लोगों को, गुरु लोगों के लिए. Thank you, ma'am. Now on behalf of all of our students, सभी गुरु लोगों को I request, हैं साथ में. on behalf of all of us students, I request our research scholars टीचर्स to के लिए, थैंक यू. felicitate ma'am. और सभी माता पिता अभिभावकों के लिए, और हम लोगों को जिनसे भी शिक्षा मिलती है अपने जीवन में, उन सबके ऑनर में ये पुष्प अर्पित है. और सबसे प्रथम तो हमारे जो गुरु माता पिता होते हैं, शिक्षक होते हैं, और ईश्वर जो हर जगह हमको निरंतर शिक्षा देते हैं, उन सभी के ऑनर में आज की गुरु पूर्णिमा के ये पुष्प अर्पित है. Now with us we also have आप लोगों Professor के लिए S.P. Srivastava sir. वहाँ पहुंच नहीं सकती, कभी आप डिपार्टमेंट में सारे बच्चे इकट्ठे हों और टीचर्स भी इकट्ठे हों तो खाने को भी मिलेगी, वरना जो यहाँ प्रेजेंट है वो आप सबकी तरफ से उनको खाना पड़ेगा. थैंक यू. Thank you, ma'am. We also have with us Professor S.P. Srivastava sir. I would request him to say 2 lines. एक सेकंड आदित्य, ये हम लोगों की तरफ से हमारे गुरु के लिए गिफ्ट है जो हम लोग देना चाहेंगे. आ जाओ फिर ये सेल्फी भी ले लो भाई, अपनी इसकी करते हुए ले लो. इस समय जितने भी गुरु थैंक यू सो मच. I would request someone to please take a screenshot. अकेले है यहाँ पर. Continue, Aditya. Yes, ma'am. I would like to request Professor S.P. Srivastava sir if he is with us to ज्वाइन हो पाए हैं सर कि नहीं ज्वाइन हो पाए हैं? सर अगर ज्वाइन नहीं हो पाए हो तो हम लोग देखेंगे कि और हमारे दूसरे टीचर भी शायद, क्योंकि टेक्निकली उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है ज्वाइन करने में, हो सकता है बीच में वो जुड़ जाए. तब तक आदित्य अपना कार्यक्रम जैसे प्लान किया वो चलाओ. Now to explore more on the Guru Purnima, I would request my classmate Rini Durgapal to please speak something. She wants to speak something on this occasion. Rini. Hello, am I audible? Yes, you are audible. So, गुरु पूर्णिमा की सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. मैं रिनी दुर्गापाल MSc स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट आप सभी को इस पावन अवसर पर आदर प्रणाम करती हूँ और आप बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ.
आज के मौके पर सबसे पहले मैं कुछ शब्दों में गुरुओं के प्रति मेरे दिल में जो सम्मान, जो भावनाएं, जो आदर है, उसे प्रकट करना चाहती हूँ। गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा के दिन यह त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, क्योंकि आज के दिन 4 वेदों के निर्माता व 18 पुराणों समेत महाभारत जैसी महाकाव्य की रचना करने वाले विद्वानों के विद्वान महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्मदिन के तौर पर हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था, और आज ही के दिन शिव जी ने समस्त ऋषियों को योग का मंत्र बताया था। इसीलिए यह त्योहार हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सब ने हिंदी साहित्य में देखा होगा, जैसे हमने हिंदी साहित्य में कई कवियों ने कई प्रकार की दोहे, कई प्रकार की कविताएं हमारे गुरुओं को समर्पित की है। उसमें से बहुत प्रसिद्ध संत कबीर जी का मैं एक दोहा आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। गुरु गोविंदों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए, कबीरा गोविंदियो बताए। यह दोहा संत कबीर जी का है, जिसमें उन्होंने गुरुओं को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया है। और इस दोहे के जरिए उन्होंने वो कहना चाहते हैं कि अगर भगवान और गुरु किसी क्षण हमारे सामने प्रकट होते हैं, तो सबसे पहला प्रणाम हमें किसे करना चाहिए? इस स्थिति में हमें पहला प्रणाम अपने गुरुओं को करना चाहिए, क्योंकि टीचर्स ही हैं जिनकी वजह से हमें मोक्ष प्रदान होता है, और वो गुरु ही हैं जिनकी वजह से हमें भगवान तक जाने का रास्ता प्राप्त होता है। आज के जनरेशन को टीचर्स का महत्व बताने के लिए हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, क्योंकि नॉलेज तो हर कोई अर्जित कर लेता है, परंतु उस नॉलेज को सही जगह पर सही समय पर यूज करना तो हमें टीचर्स ही बताते हैं। इस वाक्य को संत कबीर जी ने बहुत ही सुंदर तरीके से एक दोहे में पिरोया है। वो कुछ इस प्रकार है। पंडित यदि पढ़ी गुण मुए, गुरु बिन मिले न ज्ञान, ज्ञान बिना मुक्ति ही नहीं, सत्य शब्द परमान, कबीरा सत्य शब्द परमान। अर्थात हम शास्त्र चाहे कितना भी पढ़ ले, परंतु उसका मार्गदर्शन हमें टीचर्स ही बता सकते हैं। आज भी कई ऐसे टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाना ही अपना कर्तव्य नहीं समझते, स्टूडेंट का मार्गदर्शन करना भी अपना कर्तव्य समझते हैं। हम गुरु के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसी बात को संत कबीर जी ने अपने शब्दों में कुछ यूं कहा है कि सब धरती का गज करूं, लेकर सब वन राज, 7 समंदर मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, कबीरा गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात पूरी धरती को लपेट कर कागज भी बना दिया जाए और समंदर को मत कर उसकी शाही बना दी जाए, तब भी हम गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। आज भी आप देख सकते हैं गुरु हमारे लिए कितना काम करते हैं। इसीलिए हर स्टूडेंट को परम कर्तव्य है कि वो अपनी टीचर्स का आदर करे, और हर एक गुरु का यह परम कर्तव्य होता है कि अपने स्टूडेंट का सही मार्गदर्शन करे। मैं अपने स्पीच को अब कुछ दो लाइनों के साथ विराम देती हूँ। वो 2 लाइनें कुछ इस प्रकार है। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत का खान, शीश दियो जो गुरु मिले, तो भी सस्ता ज्ञान, कबीरा तो भी सस्ता ज्ञान। धन्यवाद। Thank you, Rini. You explained the importance of Guru in our life very elegantly, and them as our guide, not just towards a successful life, but to our salvation. Now, I would like to invite our OSH advisor and a research scholar, Priyanka ma'am, to say a few words. If she is connected with us. आदित्य, आज हमें बहुत हर्ष हो रहा है ये सब लोगों के साथ साझा करते समय कि हमारे बीच में हमारे टीचर, हमारे गुरु, हमारे मेंटर प्रोफेसर A.K. सक्सेना साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। तो हम आज पहले उनके ब्लेसिंग्स और उनके आशीर्वाद के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहेंगे। सर, आपसे रिक्वेस्ट है सर, आपको सादर प्रणाम सर, और आप हम लोगों को, सभी बच्चों को, और हम सभी आपके लिए बच्चे ही हैं, आप हमें आशीर्वाद दीजिए सर। नमस्कार सर, सक्सेना सर, नमस्कार। अगर हमारी आवाज आप
सर आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए, माइक जैसा कुछ बना हुआ होगा आपके स्क्रीन पे, उस पे क्लिक करेंगे तो आपका माइक अनम्यूट हो जाएगा। सर आपको कष्ट दे रहे हैं हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ, पर अगर आप थोड़ा सा इसमें नीचे देखेंगे अपने स्क्रीन पे, आवाज आई? सर एक माइक हाँ, जैसा अब बना आ हुआ रही आ है, रहा होगा। आ रही है। आवाज आई? आ रही है जी जी, सर। नमस्कार सर, नमस्कार सर, बोल दीजिए सर। ठीक है, ठीक है। नमस्कार सर। ये तो बहुत नमस्ते सर। अच्छा लग रहा जी। है आज हमको, पहली ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हमको तो ये हम तो आउटडेटेड हैं इन सब जी। बातों में। हम तो ब्लैक बोर्ड के टीचर रहे हैं, तो शीला जानती हैं। तो लेकिन यही बहुत अच्छा लग रहा है, और हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, इससे और खुशी हो रही है। और हमारी ब्लेसिंग्स, हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी। और हम चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि आप लोग निरंतर बढ़ते चले जाएं अपने एकेडमिक वर्ल्ड में, और आपका नाम हो। और टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है, टीचर में जो जो क्वालिटीज होती हैं, जो हमने देखा है, जो हमको हमारे सीनियर्स ने बताया और हमने देखा कि टीचर माँ बाप के बाद टीचर ही एक होता है जिसको अपने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस से बड़ी खुशी होती है। और दोस्तों में होती होगी, लेकिन वो उतनी खुशी माँ बाप के बराबर के किसी को नहीं होती है जिसमें गुरु को होती है। तो इसलिए हमको तो बहुत खुशी है कि हमको ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि ये है कि, और आज हम ये भी धन्यवाद देंगे शीला को कि हमको ये सिखा दिया थोड़ा हम भी थोड़ा सीख गए, समझे, ये उंगली चलाना और बोलना। तो सर अगर थोड़ा सा क्लिक करिए सर, एक वीडियो भी आता है, अगर वीडियो क्लिक करेंगे तो हम लोग आपको देख भी पाएंगे, एक वीडियो जैसा बना होगा आपके स्क्रीन के नीचे। और अगर नहीं भी हो पा रहा है सर, फिर भी हम माइक के पास ही है। हाँ सर, माइक के बगल में एक कैमरे जैसा बना होगा सर, वीडियो जैसा, उस पर क्लिक कर दीजिए तो हम लोग आपको देख करके आपका आशीर्वाद ले पाएंगे। कर तो रहे हैं, लेकिन अब देखो कैसे। सर हाँ सर, वो माइक के बगल में ही होगा, उस पर क्लिक कर देंगे तो आ जाएगा सर। और वैसे भी अगर थोड़ा सा समय भी लगता है तो कोई बात नहीं सर। हमें बहुत अच्छा लगा सर कि आप टेक्नोलॉजी को इतना नहीं इस्तेमाल करते, फिर भी आपने हम लोगों की प्रार्थना को सम्मान देते हुए और हम सभी के कार्यक्रम में आशीर्वाद देने के लिए इस कार्यक्रम को ज्वाइन किया। सर थैंक यू सो मच। और हम सभी की तरफ से, क्योंकि आपके के लिए तो यहाँ जितने हैं सभी आपके बच्चे हैं, और इन बच्चों के लिए हम लोग जरूर बड़े हो गए हैं, पर आपके लिए तो हम लोग आज भी अपने आप को वैसे ही बच्चा समझते हैं। और आपका आशीर्वाद हम सभी के लिए बहुत बहुमूल्य है, और निरंतर आपकी प्रेरणा से हम लोग अपने कार्य को करते रहें और अपने कर्तव्य का पालन करने में हम लोग समर्थ हो सकें, ऐसी आपसे आशीर्वाद की अपेक्षा रहेगी। आपका बहुत बहुत आभार सर ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सक्सेना सर ने हमको MSc 1 MSc 2 दोनों में पढ़ाया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग आगे पीछे वाले बैच के थे। जी, और जी, सर को याद होगा सर, मसूद हमें अच्छी तरह याद है। जी 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 सर, जस्ट जूनियर बैच के थे, तो हम नहीं मसूद की याद है भाई। जी जी, मसूद तो हमारी क्या नाम बेटी अमृता के साथ थे। नहीं सर, अमृता से सीनियर थे सर, क्या कहते हैं, अमृता के साथ मनीषा थी। वो शायद जूनियर थी। हाँ जूनियर थी। अमृता के साथ मनीषा थी। मनीषा हमारी वो मुंह बोली बहन थी। दिलीप जो मनीषा का भाई था वो हमारे साथ था, जिसकी डेथ हो गई थी। तो हमको याद है, अच्छी तरह से याद है। हम जानते हैं आपके घर तो बड़ी खुशी लग रही है हमको तो। और मतलब कुछ तो हमने सीखा आज आप लोगों से, ये और बड़ी अच्छी बात है कि ये देख के कि आप लोग ने क्या नाम आगे की पायदानों पे भी पैर रखा है, तो इसलिए हमको और अच्छा लग रहा है। और धीमे धीमे हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम हम भी कुछ थोड़ा और सीख जाएंगे। ओके, धन्यवाद। नहीं, थैंक यू सो मच सर। हमें
आप अंजलि से भी करने के लिए, इंटरनेट जब नया नया शुरू हुआ था विभाग में, तो आप किस तरह से स्टूडेंट्स से भी सीखने में आपको कभी संकोच नहीं रहा। ये चीज हम से सीखते हैं सर, कि कई मामलों में हमारे स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी को हमसे बेहतर जानते हैं, तो हमें उनसे भी सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। ये हमने आपसे सीखा सर। थैंक यू सर। ओके, ठीक, कंटिन्यू विद यू। आप लोग अपना प्रोग्राम This itself was a very जारी रखें। आवाज लग रहा है थोड़ा सा कहीं कट रही है। आदित्य, आप पहुंच रही हो तो तुम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हो। बाकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अभी हम लोग कार्यक्रम कमान फिर से आदित्य को देते हैं और आदित्य कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। सर आवाज आपकी कट रही है। This itself was a very beautiful moment between teachers and students. And moving ahead, I want to invite our OSH advisor, Priyanka ma'am, to say something on the occasion. Priyanka ma'am, is she with us? If she is not with us, then yes, ma'am. First, am I audible? Yes, ma'am. First of all, सभी लोग सभी गुरुजनों का मेरा प्रणाम और थैंक यू टू ऑल गुरुज फॉर गिविंग अस मोर देन वी कैन wish for, more than we deserve. For those gurus, I would like to dedicate a Hindi कविता। So, मैं स्टार्ट करती हूँ। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, गुरु ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। ईश्वर के बाद अगर कोई है तो वो गुरु है। दुनिया से वाकिफ जो करता है वो गुरु है। हमें अच्छा इंसान जो बनाता है वो गुरु है। बिना गुरु की जिंदगी आसान नहीं। हमारी कमियों को जो बताता है वो गुरु है। हमें इंसानियत जो सिखाता है वो गुरु है। हमें जो हीरे की तरह तराशता है वो गुरु है। हमें अंदर से एक विश्वास जगा दे वो गुरु है। जिसके पास नहीं है गुरु, समझ लेना कि वह धनवान नहीं। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। थैंक यू। और जैसा कि इस गुरु पूर्णिमा पर मैं 2 लाइन और कहना चाहूँगी कि हमें जो भी चीज़ें हमें सीख दे, हमें सिखा दे कुछ, वही गुरु बन जाता है। चाहे वो हमारे माँ बाप हो, चाहे हमारे गुरु हो, चाहे हमारे ग्रैंड मदर्स एंड हमारे भाई, छोटे भाई बहन, या फिर कोई लाइफ का इंसिडेंट जो हमें कुछ एक्सपीरियंस दे, कुछ हम उससे सीख सके। तो ये सारी चीज़ें जो है एक गुरु के रूप में ही होती हैं, जो हमें सिखाती हैं और हमें आगे सक्सेस की तरफ बढ़ने में बहुत मदद करती हैं। तो इस गुरु पूर्णिमा पर मैं आप सभी के समक्ष यही शेयर करना चाह रही थी। थैंक यू। Thank you, ma'am, for such nice lines. Now I'd invite Sampurnanand sir to say something. गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। गुरुओं का सम्मान करने की प्रेरणा तो हमें बचपन से ही हमारे माँ बाप सिखाते हैं और हम लोगों ने ये देख भी रखा है कि दशरथ चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बच्चों के लिए ट्यूटर घर में नहीं बुलाया, उनको पढ़ने के लिए गुरुकुल ही भेजा, ताकि वो इतना ओहदे पर आने के बाद भी अपने गुरुओं का सम्मान कर सके। तो इस गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं सभी गुरुजनों को हार्दिक बधाई देता हूँ और सम्मान करता हूँ। Thank you, sir. Now I request Aditi ma'am to open her camera and mic. Aditi ma'am.
Yes, ma'am. आवाज नहीं आ रही है। अभी आवाज आ रही है मेरी? हाँ मैम, आ रही है। थैंक यू आदित्य। और सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे गुरु हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हम लाइफ में सभी से सीखते हैं, तो मैं सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई हो। और जैसे कि अभी पहले ही स्पीकर्स ने सबने बोला है कि गुरुओं का क्या महत्व है हमारे जीवन में, तो उससे ही हम देख सकते हैं कि गुरुओं का स्थान, बोलते हैं हमारे जीवन में सबसे पहले जो गुरु होते हैं वो हमारे माँ बाप होते हैं। उसके बाद माँ बाप के बाद हम अपने शिक्षकों से सीखते हैं, फिर जिंदगी के मतलब हर एक जितने भी हम पड़ाव पे पहुंचते जाते हैं, हर किसी से हम कुछ ना कुछ सीखते हैं जिंदगी में। और जिससे भी हम मिलते हैं, हमें कुछ ना कुछ सीखने को अगर हम चाहें, हमारी इच्छा हो, तो हम हर किसी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। और यही एक जो कि है हमारे कल्चर की सबसे अच्छी चीज़ है कि हम लोगों ने जीवन में हर एक छोटी चीज़ों से, इवन नेचर से भी हमें बहुत कुछ सीखने का प्रयास करते हैं हम लोग हमेशा। तो नेचर भी हमारे लिए गुरु हो गई, हमारे शिक्षक गुरु हो गए, छोटे बच्चे जो होते हैं उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो इन सभी के को एक रिस्पेक्ट देना, एक ट्रिब्यूट देना, ये जो कि आज के दिन का महत्व होता है कि हम इसीलिए गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, ताकि जितने लोगों से हमने कुछ सीखा है जिंदगी में, उनको हम एज अ रिस्पेक्ट कुछ ट्रिब्यूट दे सकें, उनको अपना जो हमारा भाव है कि हमने आपसे क्या क्या सीखा है वो पे कर सकें। तो इसके लिए जितने भी मैंने अपनी जीवन में जितने भी लोगों से सीखा है, जिनसे भी मैं कुछ सीख पाई हूँ, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपसे मतलब मैंने इतना कुछ सीखा और आज मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। और इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगी। थैंक यू। Thank you, ma'am. I can see some of our OSH advisors, Shivangi ma'am, Gopal sir, as well. Uh, they have been with us since the starting of our journey. Now, since I'm talking about the starting of our journey, Professor Sheila Mishra ma'am has been a constant support, and without her, we couldn't have had gone through the journey that we have made. This OSH itself is a brainchild of Professor Sheila Mishra ma'am, so I would like to request her now to grace the occasion with her words. थैंक यू आदित्य। जैसा कि आप सभी लोगों ने कहा और हमारे आदरणीय सर ने भी कहा कि गुरु का क्या महत्व है जीवन में। गुरु का महत्व यही है कि आज हम जहाँ पर भी हैं, वहाँ पर होने का कारण हमारे गुरु हैं। और ये अभी अभी चर्चा में आया कि गुरु हमारे माता पिता के साथ हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। तो प्रथम गुरु हमारे माता पिता हैं, और उसके बाद जैसा कि अदिति ने भी बताया कि जितने लोग हमारे आसपास हैं, हम उन सभी से कुछ ना कुछ सीखते हैं, यहाँ तक कि हम नेचर से सीखते हैं। और नेचर को अगर आप देखिए तो अगर वृक्ष को देखें, पेड़ को देखें, ट्रीज को, जिनके बारे में लोग कहते हैं ना कि आजकल उनके प्रोटेक्शन के लिए कैंपेन्स चलाने चाहिए। क्यों चलाने चाहिए? क्योंकि एक पेड़ को देखिए कि वो बिना किसी चार्ज के आपसे कुछ नहीं लेता, आपको शुद्ध वायु, प्राणवायु, ऑक्सीजन देता है, आपको फल देता है, आपको छांव देता है। और जिस समय वो पेड़ एकदम अपनी आयु पूरी कर लेता है, सूख जाता है, उस समय भी वो आपको ईंधन दे के जाता है। और उसकी गिरी हुई पत्तियां और जो बचा हुआ उसका भाग है, उससे हमें खाद बनती है और उसको हम इस्तेमाल करते हैं और फिर से एक नया वृक्ष, नया जीवन मिलता है। तो नेचर में भी आप देखिए तो लगातार हम उससे सीखते रहते हैं। कहते हैं ना कि फूलों से हम हंसना सीखें, भौरों से हम गाना, और सूरज की किरणों से सीखें जगना और जगाना। यानी अगर आपके अंदर एक शिष्य का भाव है तो आप निरंतर अपने आसपास कुछ ना कुछ सीखते रह सकते हैं। अभी एक प्रश्न बड़ा अच्छा लिखा है सैयद ने कि ऑनलाइन के ज़माने में जिस समय सब कुछ इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस ऑनलाइन अवेलेबल है, ऐसे में टीचर का महत्व क्या है? अब ये ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर टीचर से अधिक स्टूडेंट को देना चाहिए। स्टूडेंट बताए। Yes, ma'am. I want to give.
Yes, Rini, you are most welcome. You can share. यस मैम, मैंने जब ये क्वेश्चन देखा तो मुझे अचानक से आज ही का इंसिडेंट याद आ गया। एक्चुअली हम लोग क्लास कर रहे थे, तब एक हमारी स्टूडेंट थी, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। तो जब वो गई तो हमारे टीचर ने उसके लिए पूछा, कंसर्न दिखाया। तो मुझे नहीं लगता कि कोई रोबोट में इतना इमोशंस होगा कि वो एक फीलिंग्स के साथ हमें पढ़ा सकेगा। हमारे लिए हम एक ऐसे भारत में रहते हैं जहाँ पे हमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए, जैसे चाहे हम अर्जुन द्रोणाचार्य का बात ले ले या एकलव्य द्रोणाचार्य की बात ले ले, तो क्या ये इमोशंस एक रोबोट, क्या एक ये इमोशंस एक मशीन हमको दे सकती है? कभी नहीं दे सकती है। और वो तो अगर हम देखें हम कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो जो मशीन होगा वो सबको एक तरह से ही पढ़ाएगा, एक तरह से ही सबको लेकर चलेगा, पर हमारे टीचर्स को इमोशनली, मेंटली ये सब पता रहता है कि किस स्टूडेंट को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से उनको मोटिवेट करना है, किस तरह से उसको एजुकेशन देना है। तो मैम मुझे नहीं लगता कि हम लोग टीचर्स को रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी उससे। ना हम टीचर्स को रिप्लेस कर सकते हैं, ना हम माता पिता को रिप्लेस कर सकते हैं मशीन से, ना हम इवन दोस्तों को रिप्लेस कर सकते हैं मशीन से। थैंक यू रिनी, तुमने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। हाँ, वेलकम मैम। स्टूडेंट आप कुछ कहते हो तो इसका मतलब है कि आपने उसको अनुभव किया है, क्योंकि टीचर की इम्पोर्टेंस अगर आप एक टीचर के मुंह से ही सुनते हो तो आपको लगता है कि ये एक लेक्चर हो रहा है। लेकिन फिर भी हम कुछ कहना जरूर चाहेंगे, जितना रिनी ने कहा है उसमें और उसको जोड़ते हुए। ये बिल्कुल सही बात है कि इमोशंस और फीलिंग्स आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं पा सकते। इसके साथ साथ एक और चीज है, अगर आपने अपने जीवन में अनुभव किया हो कि कभी कभी किसी से मिल करके आपको अच्छा लगता है, कभी कभी किसी से मिल करके आप न्यूट्रल रहते हैं, कभी किसी किसी की उपस्थिति में आपको कई बार ऐसा भी लगता है कि आप वहां से उठकर चले जाएं बिना कुछ बातचीत किए। तो इससे एक चीज आप अनुभव कर सकते हैं कि हर एक व्यक्ति का अपना एक ऑरा होता है, एक एनर्जी होती है जो बिना कुछ कहे हुए आपको बहुत कुछ ट्रांसमिट कर रही होती है। अभी साइंस में भी कई ऐसे कैमरे भी आ चुके हैं जहां पे लोगों का ऑरा कैच किया जाता है। गुरु का जो मतलब है, गुरु एक इंस्ट्रक्टर, फैसिलिटेटर या ट्रेनर नहीं है। ये उससे बियॉन्ड का एक ऐसे महत्व का पद है जो कि अपनी संपूर्णता के लिए जाना जाता है, जिसमें एक स्टूडेंट के लिए उसके मानसिक, उसके शारीरिक, उसके आध्यात्मिक और उसके जो वर्ल्डली नॉलेज है, उन सबका ज्ञान जो देने वाला है व्यक्ति है, उसको हम गुरु कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जब आपको ज्ञान देता है तो वो केवल आपको इंफॉर्मेशन नहीं शेयर कर रहा होता है, उसने अपने जीवन में अपने एक्सपीरियंस से, अपनी जो इतनी जीवन की यात्रा है उससे अपने आप को जो बनाया है, वो एनर्जी, वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन, वो आपकी बिना जाने, बिना आपको ये पता लगे कि वो आपको क्या दे रहा है, आप बहुत कुछ उससे प्राप्त कर लेते हैं। जिस समय आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उस समय आप केवल वर्ड्स सुन रहे होते हैं, पर जिस समय आप इन पर्सन क्लास ले रहे होते हैं, आप उस टीचर की एनर्जी, उस टीचर के बोलने का ढंग, उसके ड्रेस करने का सेंस, उसके चलने का, उठने बैठने का, वो कैसे लोगों से रिस्पॉन्ड कर रहा है, कैसे वो बात कर रहा है, उसके एक एक एक्शन से आप सीख रहे होते हैं। क्योंकि हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, है ना? वी हैव 5 सेंसेस: आईज, टंग, नोज, ईयर, स्किन। इन सबके साथ साथ एक सबसे बड़ी इंद्रिय है हमारा माइंड। तो इंद्रियां जो बाकी हैं 5 सेंसेस, वो देख करके सीख रही होती हैं, पर जो माइंड है वो देख सुन करके उसके साथ साथ उस एनर्जी से भी सीख रहा होता है, उसको एडॉप्ट कर रहा होता है अपने आप। एक घटना है जिसको आप पढ़िएगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद की, जिसमें अपने एक अंगूठे के स्पर्श से अपने पूरी ज्ञान और साधना को स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद में ट्रांसमिट किया। और उस ट्रांसमिशन के बाद स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व में
भारत के ज्ञान का, भारत के जो शिक्षा पद्धति है, भारत में जो कुछ भी अच्छा है उसको पूरे विश्व में उसका प्रचार प्रसार किया। तो ये क्षमता जो मिली उनको, वो किससे मिली? आप पढ़ करके देखिए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास स्कूली किताबी ज्ञान नहीं था। अभी अभी रिनी ने जो एक दोहा पढ़ा कबीरदास जी का, कबीरदास जी ने जब कहा कि गुरु और गोविंद अगर दोनों खड़े हों तो काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आप नो जिन गोविंद दियो बताए। तो ये महत्व गुरु को क्यों मिला? क्यों इन लोगों ने इतना गुरु को महत्व दिया? क्योंकि गुरु आपको इंफॉर्मेशन नहीं ट्रांसमिट करता, केवल गुरु आपको पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम विद इन। लेकिन उसके लिए आपकी तरफ से क्या रिक्वायरमेंट होती है? आपको रिसेप्टिव होना पड़ता है। आप देखते हैं कि सूरज उगा हुआ होता है, पर फिर भी अगर हम कमरे की खिड़कियां बंद कर लेंगे तो सूरज की रोशनी हमारे कमरे तक नहीं आएगी, हम अंधेरे में ही बैठे रहेंगे। तो टीचर जिस समय आपको पढ़ाता है, गुरु जो आपको ज्ञान देता है, आपके आसपास के लोगों से आप सीखते हैं, अगर आप रिसेप्टिव मोड में हैं तो वो नॉलेज बन करके आपके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी। लेकिन अगर आप केवल कान से सुन रहे हैं लेकिन दिमाग उसमें नहीं है, माइंडफुल नहीं है, थॉटफुल नहीं है, पूरी तरह फोकस्ड और अटेंटिव नहीं है, तो फिर उसका कोई बहुत महत्व नहीं रह जाता। तो ये हम सभी देखते हैं कि गुरु एक होलिस्टिक टर्म है, जिसमें कहा जाता है ना कि एक जो चंद्रमा है जो वक्राकार है, आपने देखा होगा, एक मैथोलॉजिकल एग्जाम्पल है कि भगवान शंकर के जटा में एक चंद्रमा दिखाई देता है और वो चंद्रमा टेढ़ा है। तो गुरु कैसा होना चाहिए कि गुरु की संगति में आने के बाद जो टेढ़ा चंद्रमा भी पूज्य हो जाता है। यानी शिष्य के अंदर अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर शिष्य काबिल बनता है, अगर शिष्य अपने जीवन को अच्छी तरह से चलाने के योग्य हो जाता है, अगर शिष्य एक अच्छा इंसान बन जाता है, ऐसे ही गुरु को हम गुरु कह सकते हैं, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमें डर से अभय की ओर ले जाए, जो हमें मृत्यु से अमृतत्व की ओर ले जाए। तो ऐसे गुरु के बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। जो गुरु पूर्णिमा का ये उत्सव है, ये इंस्ट्रक्टर्स के लिए या फैसिलिटेटर्स के लिए या जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो तो केवल एक पक्ष है, बहुत छोटा सा पक्ष है, उसका कोई बहुत महत्व नहीं है। और हम लोग ये जो कार्यक्रम भी कर रहे हैं, आप उन बच्चों से पूछिए, कितनी सक्सेस स्टोरीज हमने देखी हैं, जिन बच्चों के साथ हमने काम किया है, इस तरह के कार्यक्रम उनके अंदर लीडरशिप डेवलप करते हैं, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। और ये सारा काम करने के लिए हमारे एजेंडा में नहीं लिखा हुआ था। जिस समय हमने इस OSH को शुरू किया, इस OSH को शुरू करने के लिए हमारे पास कोई मैंडेटरी या विश्वविद्यालय की तरफ से कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं था। लेकिन शुरू करने के पीछे की जो भावना थी कि हमारा स्टूडेंट केवल क्लास में ब्लैक बोर्ड पे नोट्स अगर उतारता है तो बिल्कुल ठीक तुमने कहा कि वो आज क्लास में जाने की उसको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर वो नोट्स लेने के लिए जाता है, पूरी सारी की सारी लाइब्रेरी आपकी डिजिटली अवेलेबल है ऑनलाइन। लेकिन अगर वो जीवन को बनाने के लिए जाता है, एक अच्छा इंसान बनने के लिए जाता है, अगर अपने आप को परिमार्जित, अपने आप को पूरी तरह से संसार में एक एसेट बन के रहने के लिए जाता है, तो बिना टीचर के ये संभव नहीं है, बिना टीचर के संभव ही नहीं है। लेकिन वो टीचर कौन हो, वो जरूरी नहीं है कि आपके क्लासरूम में पढ़ाने वाला ही टीचर होगा। जैसा कि बार बार हमारे स्टूडेंट्स ने इस बात को एम्फेसाइज किया कि वो टीचर आप अपने आसपास देख सकते हैं। मकड़ी जो बार बार प्रयास करके जाला बिनती है, नीचे गिरती है, फिर ऊपर उठ जाती है। दत्तात्रेय जी ने अपने 24 गुरु माने हैं। उन 24 गुरु में उन्होंने हर छोटे छोटे से जानवरों, इंसेक्ट्स और कीड़ों से भी सीखने की जो उनके अंदर रिसेप्टिविटी थी, बात तो रिसेप्टिविटी की है। गुरु तो आप मिट्टी की मूर्ति बना करके एकलव्य ने द्रोणाचार्य की उनसे सीख लिया। तो शिष्य
के होने से ही गुरु है। यदि शिष्य अच्छा है तभी वो गुरु से कुछ प्राप्त कर सकता है। तो एक एलिजिबिलिटी कंडीशंस, श्रद्धा और विश्वास। अगर गुरु के लिए आप ओपन नहीं है, आप गुरु के पास एक विनम्र भाव से नहीं जाते, और आप गुरु को अगर टेस्ट करने के लिए जाते हैं, एग्जामिनर बन करके जाते हैं, तो फिर आप गुरु से वो प्राप्त नहीं कर सकते जो गुरु देने में सक्षम है। गुरु के पास जाने से पहले, जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में थ्योरम भी प्रूव करते हैं, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं? लेट अस एज्यूम a इज इक्वल टू b प्लस सी एक्स, राइट? तो एजम्पशन से शुरू होती है बात, और फिर जाके थ्योरम में प्रूफ होती है। तो इतना तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि आपका टीचर आपके लिए कुछ अच्छी चीजें बता रहा है, कुछ अच्छा उसके पास ज्ञान है जो आपके लिए आवश्यक है और आपके जीवन को बेहतर बना सकता है। जब आप ये एज्यूम करके जाते हैं, उसके बाद आप टेस्ट करिए कि वो जो कह रहा है वो ठीक है कि नहीं, उससे आपको कुछ लाभ हुआ कि नहीं, या फिर वो अपने स्वयं के जीवन में वो धारण करता है या नहीं। ये टेस्ट करने का जो स्टेज है, ये पहली स्टेज के बाद आती है। शुरुआत करिए श्रद्धा और विश्वास से। तो अगर यहाँ से आप शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको निसंदेह अपने गुरु से ज्ञान भी प्राप्त होगा, अपने अंदर जो कुछ भी आप करना चाहते हैं उसको करने की क्षमता भी प्राप्त होगी, जीवन खुशहाल होगा, और दूसरों के लिए भी आप एक बहुत ही उपयोगी सहयोगी के रूप में आप तैयार होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अपने गुरुजनों को और उन सभी को, अपने स्टूडेंट्स को भी, जिनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, उन सभी को आज के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, हार्दिक शुभकामनाएं, और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, अपने गुरुओं को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। Now, as we move to the end of the session, I thank everyone for joining us, especially our professors and gurus. गोपाल भी यहाँ पर है, रिसर्च स्कॉलर है, अगर वो कुछ कहना चाहे तो गोपाल कह सकते हैं। Yes, sir. गोपाल रिसर्च स्कॉलर तो यहाँ पर है, टीचर है, असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, तो वो गुरु और शिष्य दोनों की भूमिका में यहाँ पर है। गोपाल, ओवर टू यू। सभी गुरुजनों को मेरा हार्दिक प्रणाम। मैम प्रणाम। मैम मेरी आवाज आ रही है मैम? आ रही है गोपाल। अच्छा। देखिए, पहले तो जैसे 2-3 पॉइंट्स मैं आज डिस्कस करना चाहूंगा, क्योंकि 3 बजे से एक एग्जाम लगा हुआ है, तो 1-2 पॉइंट में मैं आपसे बस एक डिस्कस करना चाहूंगा कि गुरु चाहिए क्यों, गुरु की मतलब आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। जैसे जितनी भी पर्सनैलिटीज हैं, अगर आप देखिए जो महान पर्सनैलिटीज हैं, जैसे कि आप चाहे तो कृष्ण भगवान को ही देख लीजिए, राम भगवान को देख लीजिए, शिवाजी को देख लीजिए, या आप सचिन तेंदुलकर अगर खेल में जाना चाहें तो सचिन तेंदुलकर को देख लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी को देख लीजिए, या विवेकानंद जी को देख लीजिए। किसी भी आप फील्ड में अगर आप देखेंगे तो इन सभी पर्सनैलिटीज जो एक ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं, इनको गाइड करने वाला कोई ना कोई रहा है। ये अपने आप ही नहीं गाइड हो गए, मतलब हाँ, इनके अंदर जैसे मैम ने कहा ना कि रिसेप्टिविटी थी, इनके अंदर ये था कि हाँ, हमें ये चीजें लेनी है, अगर जो हमें सीखना है वो चीजें। लेकिन अगर इनके गुरु ना होते, अगर वो स्रोत ही ना होता, तो इनका क्या होता? क्या जो ये विवेकानंद रहे जिनको हम लोग जानते हैं, या कोई भी आप ले लीजिए, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, या किसी भी फील्ड में शिवाजी हैं, राम जी, तो क्या ये वाकई राम और कृष्ण होते? तो ये थोड़ा सा समझने की बात है कि क्या गुरु का क्या रोल है। वशिष्ठ जी का क्या रोल था राम जी के, महर्षि संदीपनी जी का क्या रोल था कृष्ण जी की लाइफ में, समर्थ गुरु रामदास जी का क्या रोल था शिवाजी में, केशव रंजन बनर्जी का क्या जो है भूमिका रही महेंद्र सिंह धोनी के कैरियर में, या रमाकांत आचरेकर की क्या भूमिका रही सचिन तेंदुलकर के। तो ये चीजें अगर हम थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो इन सभी के अंदर एक थोड़ी सी चिंगारी आप कह सकते हैं, अपनी अपनी फील्ड में एक जैसे कहते हैं ना कि एक चिंगारी, एक फ्लो जरूर रहा है इनके अंडर में, लेकिन उसको निखारने का काम, या उसको बाहर जो आज हम दुनिया के रूप में जो एक
उभरते हुए चीजों के रूप में हम देखते हैं तो वो किसने किया है, वो हमारे गुरुजनों ने ही किया है। और मैं खुद आज एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मैं प्रोफेसर शीला मिश्रा मैम को पूरा क्रेडिट देना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड, बिकॉज मुझे अभी भी वो क्षण याद है कि जब मैम अमेरिका में थी, पिछले 12 अगस्त को मैम गई हुई थी, और मैंने मैम से ये पूछा था कि मैम मेरा कमीशन का एग्जाम आ रहा है तो मैं कैसे करूं। तो मैम ने ये बोला था कि नहीं, मैं तो अभी बाहर हूं और तुम अपनी प्रिपरेशन जो है अच्छे से करो, और जब तक हम नहीं आ रहे हैं तब तक अपना जो भी पीएचडी का काम है वो आप करते रहिए, लेकिन साइड बाय साइड आप कमीशन की भी तैयारी करते रहिए। तो ये चीज मैं ये मानता हूं कि गुरु, और मैं तो ये मानता हूं कि मेरा पूरा जीवन जो है गुरुओं द्वारा ही गढ़ा गया है। तो मैं इतना ही, अच्छा एक पॉइंट और मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ कि हम लोग जनरली क्या कहते हैं, जैसे ये कहा है कि माँ बाप जो होते हैं वो हमारे पहले गुरु होते हैं। एक चीज मैं जो जितने भी यहाँ जूनियर्स हैं उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा रेसिप्रोकेट होकर के भी सोचे हैं चीजों को, कि माँ बाप में तो हम लोग गुरु ढूंढते हैं, क्या गुरु में भी हम अपने माता पिता को ढूंढ सकते हैं? तो ये चीज थोड़ा सा सोचने का है कि आप थोड़ा सा अगर दोनों को एक रेसिप्रोकेट करके, अगर कोई रिसर्च करके या कोई आप अपनी लाइफ से ही एडिट करके अगर आप मुझे बताएं तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। कि जैसे शीला मैम है तो मैं तो इनको अपनी माँ जैसा मानता हूँ, ये बिल्कुल मेरी माँ की तरह है। और जितने भी हमारे टीचर हैं, प्रोफेसर वीएन राय सर जिन्होंने मुझे एमएससी में पढ़ाया था, तो मैं उन्हें बिल्कुल, वो बस जेनेटिकली फादर या मदर नहीं है बस, तो वो भाव होना चाहिए। और जब वो मैच करता है तो आप देखिए सक्सेस मिलती है। ये तो मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। मैम भी यहाँ बैठी हुई हैं, बाकी जितने भी यहाँ पे जूनियर्स और हमारे जो साथ के पीएचडी रिसर्च स्कॉलर्स हैं बैठे हुए हैं, तो गुरु का तो जो महत्व है वो तो कहीं से किया नहीं जा सकता। क्योंकि जैसे हम लोग जो जनरली कहते हैं कि लाइट जो है एक सोर्स है, तो वो कौन होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य क्या हो गया? सूर्य तो एक गुरु हो गया ना, मतलब जो स्रोत है जिसको आप डिफाइन भी नहीं कर सकते हो। गुरु की तो मैं कहता हूँ डेफिनेशन भी नहीं हो सकती है। लोगों ने बहुत सारी कोशिशें करी हैं कि हम डिफाइन कर लें गुरु को। मुझे आज तक कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिल पाई कि हम गुरु के लिए कोई वर्ड्स यूज कर सके या उनको एक कुछ शब्दों में या कुछ लाइनों में हम कर सकें। तो बस मैम इतना ही मैं आप जैसे गुरुजनों के लिए और आप जैसे जितने भी गुरुजन हैं उनके लिए बस एक ही कहना चाहूंगा कि बस हम लोग जो भी हैं वो आपके ही संरक्षण में जो हुआ है, बस आपके ही उससे हैं। और आप ना होते तो शायद हम लोग यहाँ पे ना पहुंचते। तो मैं ये मानता हूँ। और सपोर्ट तो बहुत जरूरी है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी आगे बढ़ने का है तो टीचर को खुद लग जाता है कि इसके अंदर कोई तड़प है या ये बच्चा या बच्ची आगे बढ़ना चाह रहा है। तो वो जब आपके अंदर वो एनर्जी या वो स्प्राउटिंग पावर देखते हैं ना कि ये बीज जो है धरती से निकल करके एक पेड़ बनना चाहता है, तो वो चीज आप ये, लेकिन ये चीजें तभी आएंगी जब वो टीचर जो स्टूडेंट है वो भी उसी तरीके का हो। टीचर को भी टीचर के साथ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन आप स्टूडेंट्स को भी ये चाहिए कि अपने अंदर का वो जो ये कहते हैं ना, जैसे मैम ने एक वर्ड यूज किया रिसेप्टिविटी, तो वो रिसेप्शन वो जो लिंक होना चाहिए प्रॉपर, जिसको कह सकते हैं हम एक सिनर्जी जिसे कहते हैं हम, तो वो मैच करना बहुत जरूरी है। और वो मैच कर जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे भी, चाहे आप प्लेयर हो, चाहे आप एजुकेशन की फील्ड में हो, चाहे आप जो है सिंगर हो, कुछ भी किसी भी फील्ड में हो, स्पिरिचुअलिटी की फील्ड में हो। और आपको ये मैं थोड़ा सा एक मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आप उसको थोड़ा सा इस पॉइंट से भी देखें कि क्या हम गुरु में भी अपने माता पिता को तराश सकते हैं कि नहीं तराश सकते हैं। और ये थोड़ा सा है। और बाकी आप लोग अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा मुझे शेयर करें, और क्योंकि मैं तो बैठा रहता हूँ, सोचता रहता हूँ कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और हम तो बस जी मैम बहुत खुशी होती है जब हमारे स्टूडेंट, जैसा कि हमारे यहाँ प्रोफेसर सक्सेना सर ने शुरू में ही कहा था कि माता पिता के बाद यदि किसी को सबसे अधिक खुशी होती है तो वो आपके गुरु होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, जब आपको आगे बढ़ता हुआ देखते हैं। तो आप लोगों के हर अचीवमेंट को हम लोग अपना अचीवमेंट मान करके प्राउड फील करते हैं, खुश होते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मोहम्मद ने फिर से एक प्रश्न किया है। उस प्रश्न के बदले में मुझे एक और प्रश्न ही करना है, क्योंकि तब शायद बात अच्छे से क्लियर हो पाएगी, क्योंकि तब आप सोचेंगे उस चीज को। यदि हम कहें कि आपके माता पिता की जगह
आपके हॉस्टल में आप रहें और आपके सारे जो जरूरतें हैं, कपड़े का, खाने का, आपको पूरी व्यवस्था दी जाए, पर माता पिता की जगह वो कोई आज एलेक्सा टाइप की कोई चीज वो कर रही हो। या फिर आप ये समझ लें कि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनकी जगह कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रोबोट हो, ह्यूमनॉइड्स हो, और वो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये सारी चीजें अगर कर रहे हो और ये बन चुका है, इसमें कोई अब नई बात नहीं है। आपके पास ऐसे टेक्नोलॉजी अवेलेबल हो गई है जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको लगता ही नहीं है कि वो कोई रोबोट है, जब तक कि आपको बताया ना जाए। फिर क्या कारण है, इतनी व्यवस्था के बाद, इतनी सारी चीजों के होते हुए, जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आज वहां की अगर सबसे अधिक गंभीर समस्या कोई मानी जाए तो है मानसिक स्वास्थ्य की, डिप्रेशन की, आइसोलेशन की, लोनलीनेस की। हमने यूएस में 1 वर्ष जो रह करके बड़े निकट से अनुभव किया, वहां हर एक बच्चा कहीं ना कहीं, और केवल बच्चा ही नहीं, वहां के हर नागरिक को, अभी आप अगर गूगल करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से थोड़ी रिसर्च कर लीजिए, तो ये देखेंगे कि लगभग एक बहुत बड़ा पोर्शन स्टूडेंट्स का 15 साल की उम्र के नीचे किसी न किसी प्रकार के मानसिक अवसाद से पीड़ित है। और 25 वर्ष के नीचे कितने बड़ी संख्या में वहां के जो युवा हैं वो भी इस डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं। आइसोलेशन और लोनलीनेस उनके लिए एक अभिशाप बन चुका है। और वही नहीं, जापान में तो एक घटना लोग बताते हैं कि वहां के बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग छोटे छोटे से अपराध करते हैं, जिसकी वजह से वो जेल चले जाएं और उस जेल में उन्हें 1-2 और कैदी मिल जाएं जिसके साथ वो अपना समय बिता सके। अगर इससे भी आपको क्लियर नहीं होता तो आप कुछ दिन अपने वास्तविक मित्रों से, माता पिता से और सभी जो रियल लोग हैं उनसे डिस्कनेक्ट होकर के केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भरोसे अपनी जिंदगी जीने को जीना शुरू करिए, तो देखिए कि आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितना आपको आनंद आता है, कितना आपको शांति मिलती है संभव। मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी भी ह्यूमन इंटेलिजेंस की बराबरी नहीं कर सकती। अगर कितना भी अनस्किल्ड व्यक्ति हो, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहीं सुपीरियर है यदि हम इमोशंस और फीलिंग्स की बात करें, क्योंकि उसका जिस समय आप बीमार होते हो, जिस समय आप डिप्रेस्ड होते हो, अगर आपका फ्रेंड आकर के सिर्फ आपके कंधे पर हाथ रख देता है, आपके माँ बाप सिर्फ आपको गले लगा लेते हैं, कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं बताते, कुछ केवल आपको गले लगा लेते हैं, उस समय जो आप फील करते हैं उसी तरीके की फीलिंग जिस समय एक ट्रू टीचर अपने ट्रू स्टूडेंट के साथ, ट्रू स्टूडेंट भी होना चाहिए, स्टूडेंट टीचर को अगर टेस्ट करने के लिए आएगा तो टीचर भी उसको उतना ही बताएगा जितना उसके सिलेबस में दिया हुआ है, जितना उसकी तनख्वाह मिलती है। लेकिन जब ये एक टीचर और एक स्टूडेंट अपने ट्रू इंटेंट के साथ, पूरी भावना के साथ एक दूसरे के साथ एक साथ पढ़ना शुरू करेंगे। एक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है, इसीलिए भारतीय ज्ञान की पूरे विश्व में अगर आप देखिए, वेस्टर्नर्स लोग आज भारतीय ज्ञान की तरफ क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें कहा गया है सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ क्या है वो हम आपको बताते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों ईश्वर से एक साथ प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं कि हम दोनों साथ साथ आगे बढ़ें, हम दोनों साथ साथ ज्ञान प्राप्त करें, हम दोनों एक दूसरे से कभी कोई ईर्ष्या ना करें, कभी कोई एक दूसरे से द्वेष ना करें। यानी ट्रू इमोशनल वेलबीइंग, ट्रू वेल विशर के रूप में स्टूडेंट और टीचर दोनों अपने जीवन के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ें। यदि इस भावना के साथ गुरु और शिष्य जुड़ते हैं
तो उस क्षमता की बराबरी दुनिया का कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। ये आप अपने जीवन में शायद आज अनुभव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी अगर रिसर्च करिए तो आज संसार की सबसे बड़ी समस्या है लोनलीनेस की, एक वेल विशर की, एक ऐसे व्यक्ति की जो सचमुच उनका भला चाहता हो। और ये एक्सपीरियंस की बात है, ये इंफॉर्मेशन की बात नहीं है। और अगर आप इसको अपने जीवन में अनुभव करें तो हम सब लोगों के साथ शेयर जरूर करना। ये हम एडवाइस भी करते हैं और ये सजेस्ट भी करते हैं बाकी सब लोगों के साथ कि आप एक रोबोट के साथ रहना पसंद करेंगे या फिर इंसान के साथ अपना समय, आप वकेशन पे एक रोबोट के साथ जाना पसंद करेंगे या घर वालों और मित्र के साथ। इसी के साथ आपका उत्तर शायद और क्लियर होगा क्योंकि आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे। थैंक यू। Hopefully, Sayyed, you got your answers, and very beautiful words said throughout the events, throughout the session. Now, closing the event, I want to say this one last thing. A good event never ends in the world. They take only a pause and keep us awaiting for the next. So we will meet in the upcoming sessions of OSH, and we'll try to continue as we used to do of conducting sessions every week. So thank you to everyone for joining, and now we may close it. Ma'am, say so. Thank you, Aditya. Thank you all the students, and thank you very much